everyone, this is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to our YouTube channel SNEPS Biology. So in this video we will discuss the second part of the environmental science practice set for all the PG entrance test along with CPET 2022. So let's start, but before starting let me tell you, if you are new to this channel, do subscribe, press that bell icon next to the subscription button, select all to get notified whenever a new video comes up from our channel. Okay, so let us start the practice set. Question number 1. The Chernobyl disaster in the then USSR, now known as Ukraine, was caused on 26/4/1986 by a, you know about Chernobyl disaster, right? So that was caused by what? Nuclear test, nuclear reactor accident, nuclear waste disposal leak या फिर nuclear weapon accident. It was caused by a nuclear reactor accident. Okay, option B is the correct one. Next, come to question number 2. The term thermocline deals with the region in a lake where there is. Okay, thermocline किसे बोलते हैं? Clear? So where there is freezing temperature, minimum fall in temperature, maximum fall in temperature या फिर no effect of temperature. Okay, thermocline refers to the region in a lake where there is maximum fall in temperature. Okay, जो डेप्थ लेयर है, डीप लेयर है, उसमें बहुत कम टेम्परेचर होता है और जो ऊपर के लेयर है उसमें रिलेटिवली हायर होता है टेम्परेचर. क्लियर? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 3. The response of plants to the rhythmic diurnal fluctuations in temperature is called thigmotropism, thermotropism, photoperiodism या फिर tropism. ओके, सो यहाँ पे पूछा है क्या? टेम्परेचर के बारे में. ओके, रेस्पॉन्स टू टेम्परेचर, रिदमिक डायurnal फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, तो वी कॉल इट एज व्हाट? योर थर्मोट्रोपिज्म. ओके, so let me know in the comment section what is thigmotropism, what is photoperiodism and what is simply tropism. Okay, next come to question number 4. Relative biological effectiveness, that is RBE, it is very important. Okay, is usually referred to damages caused by, okay, low temperature, high temperature, pollution या फिर radiation. Okay, it is the damages caused by what? Your radiation. Understood? Option D is the correct one. So what is your relative biological effectiveness? It is the ratio of biological effectiveness of one type of ionizing radiation relative to another. Okay, given the same amount of absorbed energy. Absorbed energy को हम constant रखेंगे. Okay, तब उसके बाद हम क्या करेंगे? एक टाइप का आयोनाइजिंग रेडिएशन का उसका बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस को दूसरे के साथ डिवाइड करेंगे. जो रेशियो निकलेगा उसे हम बोलेंगे RBE और रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 5. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ जेरिक एनवायरनमेंट? ओके, जेरिक एनवायरनमेंट मतलब ड्राई कंडीशन, राइट? तो वहाँ पे क्या होता है? एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, हाई रेट ऑफ वेपोराइजेशन या फिर नन ऑफ द एबव. ओके, तो अगर हम जेरिक एनवायरमेंटल कंडीशन को देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है? एनुअल प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है, वेपोराइजेशन रेट लो रहता है, ओके, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी लो रहता है और जो टेम्परेचर है वो नाइट टाइम में लो रहता है एंड डे टाइम में हाई रहता है, राइट? तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, राइट? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 6. एनीमोमीटर इज यूज टू मेजर. इजी क्वेश्चन है. इट इज यूज टू मेजर व्हाट? योर विंड वेलोसिटी, राइट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 7. इन व्हिच लेयर ऑफ लेक टेम्परेचर चेंज अकर्स? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन, हाइपोलिम्नियन या फिर प्रोफंडल. ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेटालिम्नियन. ओके, क्लियर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट one. It is the layer of the lake where temperature change occurs. Next, come to question number 8.
इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन फ्लावरिंग इज स्टडीड इन, ये आप +2 से पढ़ते आ रहे हो. ओके, इट इज वर्नलाइजेशन. क्लियर? लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, राइट? वर्नलाइजेशन. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 9. सेक्की डिस्क इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ. सेक्की डिस्क को हम किसके मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं? टर्बिडिटी ऑफ वाटर, बीओडी ऑफ वाटर. बाई बीओडी क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. ओके, लाइट इन वाटर, फ्लोरा एंड फौना ऑफ वाटर. ओके, वी यूज दिस सेक्की डिस्क टू measure the turbidity of water. Okay, let me know in the comment section what is BOD. Okay, biological oxygen demand जो है वो क्या है? Next come to question number 10. Which one of the following would not make minerals more available to plants? Okay, इनमें से क्या एक कंडीशन है जो कि प्लांट्स को मिनरल देने के लिए फेवरेबल नहीं है? ओके, क्लियर? वुड नॉट मेक मिनरल्स, राइट? दिया हुआ है. तो देखो, इंक्रीजिंग रेनफॉल इन फॉरेस्ट, राइजिंग पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल्स, वाटर लॉक्ड सॉइल्स, इंट्रोड्यूसिंग फंजाई टू फॉर्म माइकोराइजे. तो देखो, अगर इंक्रीजिंग रेनफॉल इन फॉरेस्ट होगा, ओके, फॉरेस्ट में अगर ज़्यादा रेनफॉल होगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली जो सॉइल विच इज रिच इन मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ओके, दे विल गेट वॉश्ड अवे, right? As a result, what will happen? Less mineral will be available to plants. Okay, it is not favorable. So option A is the correct answer. Next come to question number 11. Heavy rainfall throughout the year results in luxuriant evergreen forest, deciduous forest, scrub forest या फिर tiger forest. Scrub forest क्या होता है? वो जो झाड़ी वाला forest, right? तो देखो, 11 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूछा है हेवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, तो दैट विल रिजल्ट इन एवरग्रीन फॉरेस्ट, लग्जरियंट एवरग्रीन फॉरेस्ट. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 12. 3 types of vegetation in the tropical and temperate areas is determined by the amount of seasonal distribution of rainfall and humidity of air. It is called Skimper's first law, second law, third law या फिर नन ऑफ दिस. ओके, यहाँ पे दिया हुआ है एक स्टेटमेंट कि 3 तरह का वेजिटेशन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया में डिटरमिन होते हैं. कैसे? बाय द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड एयर की जो ह्यूमिडिटी होती है उसका अमाउंट से. क्लियर? तो ये जो स्टेटमेंट है वो स्किम्पर का कौन से लॉ से रिलेटेड है? ओके, इट इज रिलेटेड टू द थर्ड लॉ. क्लियर? इकोलॉजिकल लॉज जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कीपिंग योर एग्जाम इन माइंड, राइट? तो वो जो लॉज हैं उनके जो स्टेटमेंट्स, ओके, एंड देयर एग्जाम्पल, रिलेटेड एग्जाम्पल्स, वो थोड़ा आप क्या देख के जाना एग्जाम से पहले. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 13. प्लांट्स ग्रोइंग इन शेड कंडीशंस आर. शेड कंडीशन में जो प्लांट ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज योर सियोफाइट्स. ओके, हेलियोफोबस क्या है? हेलियोफोबस शियोफाइट्स होते हैं शेड लविंग, सियोफाइलस भी होते हैं शेड लविंग. ओके, लेकिन हेलियोफोबस क्या है? दे आर सन हेटिंग, राइट? तो सन हेटिंग मतलब दे आर ऑल्सो शेड लविंग, राइट? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दीज. क्लियर? तो हमेशा चारों के चारों जो ऑप्शंस हैं उन्हें अच्छे से आप लोग देखना. ओके, एंड आंसर डिसाइड करना. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 14. हेलियोफाइट्स आर सन लविंग प्लांट्स एंड हैव. ओके, जो प्लांट सन लविंग होते हैं उनमें क्या क्या फीचर्स दिखाई देते हैं? क्लियर? देखो, वेल डेवलप्ड पैलिसेड, स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेस, देन स्टोमाटा ऑन लोअर सरफेस, देन ऑल ऑफ द अबव. ओके, ये जो तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं दे कैन बी ऑफ हेलियोफाइट्स. ओके, हु आर द सन लविंग प्लांट्स. क्लियर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 15. द रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू, ओके, इन अ लीफ आर डिटरमिन्ड बाय exposure of plant during development to temperature, light, nutrients and humidity. जो
होते हैं आपका पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ओके, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू इन अ लीफ, ओके। तो उनके जो रिलेटिव वॉल्यूम है वो क्या डिटरमाइन करता है? दैट इज डिटरमिन्ड बाय व्हाट? एक्सपोजर ऑफ प्लांट ड्यूरिंग डेवलपमेंट टू लाइट। क्लियर? बी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 16। मैंग्रोव वेजिटेशन इज फाउंड इन, मैंग्रोव वेजिटेशन कहाँ पे दिखाई देता है? वेस्टर्न घाट, कुल्लू वैली, देहरादून वैली या फिर सुंदरबंस? इट इज इन सुंदरबन, राइट? नेक्स्ट 17, वाटर स्टोरेज टिश्यू हैज large size thin walled cells, mucilage, large sized vacuoles, all of the above। ये तीनों के तीनों क्या है? आपका जो ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, ओके, उनमें जो वाटर स्टोरेज टिश्यू होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक है, राइट? म्यूसिलेजिनस टिश्यू दिखाई देता है, उनका साइज लार्ज होता है, टिश्यू का साइज लार्ज होता है, और सेल वॉल जो है वो थिन होते हैं। क्लियर? और वैक्यूल जो है वो भी लार्ज साइज होता है। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 18। प्लांट्स कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल विद इन 4 to 6 weeks बिफोर द ऑनसेट ऑफ ड्राई कंडीशन इज सेड टू बी। जो प्लांट्स ड्राई कंडीशन आने से पहले, ओके, 4 से 6 हफ्तों में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देते हैं, ओके, उन्हें क्या बोलते हैं? तो वो क्या करते हैं? जो ड्रॉट कंडीशन आने वाला है उससे वो एस्केप कर जाते हैं, बच जाते हैं, राइट? तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ड्रॉट एस्केपिंग। क्लियर? अंडरस्टूड? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19। थिकेस्ट क्यूटिकल ऑन द फ्लैशी लीव्स इज फाउंड इन। लीव्स में लीव्स फ्लैशी होते हैं और क्यूटिकल बहुत थिक होता है। इनमें से किसका? एलोवेरा जो है, राइट? यूफोर्बिया, ओपुन्शिया या फिर कैलोट्रोपिस? क्या होगा? इट इज एलो। क्लियर? 19 का आंसर ए। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 20। हायर रूट इज टू शूट रेशियो इज फाउंड इन, ओके, सामोफाइट्स, हेलोफाइट्स, एपीफाइट्स या फिर हाइग्रोफाइट्स, ओके। तो हायर रूट शूट रेशियो इनमें से सैमोफाइट्स में दिखाई देता है, क्योंकि दीज आर द प्लांट्स विच ग्रो ऑन सम जेरिक कंडीशन, ओके, और जेरिक कंडीशन में जो ग्रो करते हैं उनका रूट जनरली ज़्यादा होता है, लंबा होता है, राइट? तो हायर रूट शूट रेशियो इज फाउंड इन सैमोफाइट्स। क्लियर? So this is all about the practice set. I hope this video will be helpful to you all. If you're liking our videos, then hit like, share with your friends. If you have not yet subscribed, subscribe to our channel and press that notification button to get all the notification whenever a new video comes up. Okay? So मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में. Till then, take care of yourselves. Keep studying, keep practicing. Thank you.